کہ اوپننگ وغیرہ ہونی ہے آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ نہیں. یہ کون ہے؟ مما ویری گڈ. آپ کا بھائی ہے؟ کیا نام ہے بھائی کا؟ جی پہلے جو ہے نا جس وقت اس کو آلہ نہیں لگا ہوا تھا نا کوئی آواز صحیح سن نہیں سکتی، سنتی تھی لیکن بہت ہائی لیول پہ. بندے نا درج ہوئے اج نویں اج تقریباً 40 بچے نے رجسٹرڈ ہیں جڑے نویں آئے نویں آئے 40 بچے. رسپانس ابھی سے کو پتہ نہیں لگ رہا نا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے لگائے گا نا تو پھر انشاءاللہ اس کا رسپانس نہیں وہ آنسر ہے اس کو تھوڑی تھوڑی کچھ محسوس ہو رہا ہے. آواز محسوس ہو رہی ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ گڈ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بتایا اور یہ اللہ پاک کی خوشنودی کا ہم سبب بنے. عائشہ سلیم ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جس قدر حسب استطاعت جو ہے وہ تعاون کریں. السلام علیکم ویورز، امید کرنے ہیں سارے دوست پہنا پرا آپ ضرور ٹھیک ہو سو تو خوشباز سو. اللہ نے فضل کرنا شروع کرنے ہیں اج نا ولاگ تساں دیکھنے پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل کشمیر پیراڈائز بیوٹی. اج تساں پہنا پرا خدمت وچ ایک نئی ویڈیو نظر آیا تھامل ٹائٹل دسوں تک کیا سی. بالکل جی اج اساں اس ٹائم وادی اسماعین ایک چھوٹا جا شہر ہے بنڈی اتھا اج موجود ہاں. تے اتھا اج آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ نی اوپننگ ہو رہی ہے تے اسپیشل اسیں انوائٹ کیتا گیا ہے تے اج اس دفتر نی اوپننگ ہو سی تے اگے چلے گا اسی مکمل دفتر نہ وزٹ بھی کران گے جڑی اتھا پروگرام وغیرہ ارینج کیتے نے وہ بھی دساں گے تے تسی دساں گے پیچھے جنہ بھੈਣ ਭਰਾ نے ویڈیو تکی سی کہ یہ ویڈیو کس چیز نے ریلیٹڈ ہے، یہ دفتر کس چیز نے ریلیٹڈ ہے، آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ کیا سسٹم ہے اس نے اندر. یہ اگے چل گیا مزید جڑے اساں نال اتھا بندے موجود ہیں انہاں کولوں انٹرویو وغیرہ بھی لاساں تے باقی تساں کی مکمل اساں اس مطلب گائیڈ بھی کرساں. باقی چلنے ہیں سب تو پہلے تساں یہ دسنے ہیں دفتر نہ وزٹ کرانے ہیں اس تو بعد جڑی گیدرنگ ہے جڑا کچھ بھی ہونا سین تساں دسنے ہیں. جی ویورز اے سامنے ہے جی بنڈی بازار تے سو مین روڈ جانی پی ہے تے باقی ہے کہ سامنے آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ اتنے دفتر چھوٹا جا اوپن ہو رہا ہے تے باقی تک سو عوام نے رش اتنے کافی تعداد بندے دور دور تو گڈیاں پر آئے ہیں اپنے بچے وغیرہ لے گئے جڑے بچے بول نہیں سکنے سن نہیں سکنے بولنے تو سننے تو محروم ہیں. تو یہ ادارہ جڑے ضرورت مند بچے ہیں انہوں نے طبی امداد واسطے کوشش کرسی تے انہوں کی ڈیوائساں وغیرہ لواسی تے باقی چلنے ہیں بندے وغیرہ کھلتے ہیں اتنا انہیں دفتر نے وزٹ کرانے دفتر کی اوپننگ وغیرہ اسی اور نال سارا کچھ اسی وزٹ کرانے ہیں. باقی جی اس سائڈ پر تک نے سو کہ اوپننگ وغیرہ ہونی ہے آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ نہیں دفتر نے وزٹ بعد ہی کرایا سو چیک کرنے سو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. یا اللہ کریم پیارے آپ کا کریم علیہ السلام کا صدقہ جس مشن کے لیے یہ کام شروع کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما. آمین. یا اللہ جو جنہوں نے شروع کیا ان کے اعمال میں برکت پیدا فرما. آمین. جو کرنے والے کروانے والے سب کے اعمال میں برکت پیدا فرما. آمین. اور اس میں ترقی عطا فرما. آمین. اور یا اللہ اس میں خلوص عطا فرما. یا اللہ اس کا بدلہ تو ہی دینے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے خصوصی کرم و فضل فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. باقی جی آشا سلیم ویلفیئر ٹرسٹ نے جو دفتر ہے اوپننگ ہو گئی ہے تو باقی سائڈ پر کمپیوٹر وغیرہ لگے اس سائڈ پر ڈاکٹر نے جو سیٹنگ وغیرہ بہنے نے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بنائے ہیں یہاں پر بچوں کے لیے جن بچوں کو سماعت کا مسئلہ ہوگا ہم وہاں پر ان کا ٹیسٹ وغیرہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بچے جو ذرا بڑی عمر میں ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم لوگ ہیڈ فون لگا کے یہاں پر ہم لوگ ان کے لیے ایڈمیٹر رکھا کریں گے. ایڈمیٹر رکھ کے ان کی جو آواز کی ساؤنڈ سسٹم ہے وہ چیک کیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سماعت والا ہمارا روم ہے یہ اسپیچ تھراپی روم ہوگا. جو بچے جن کو ہیئرنگ ایڈ لگ چکے ہوں گے
या जिन बच्चों का समाज ठीक होगी, सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम होगी, ठीक उनके है। लिए फिर साथ वाले हमने केबन में हमने स्पीच थेरेपी करेंगे। ये 2 केबन है और ये है कंप्यूटर लैब। इसमें यहाँ के लिए ना एक तो इसका डेटा वगैरह एंट्री की जाएगी, जितने बच्चे आएंगे कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उनकी डेटा एंट्री की जाएगी, ठीक है। और इस तरह फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या स्पीच थेरेपी की क्लासेस वगैरह या दीगर जो चीजें होगी ना वो फिर इस कंप्यूटर के सिस्टम मतलब एक टाइम में कितने बच्चों को जो है ना एक ये टाइम में एक 2 बच्चों को जो है ना कराएंगे? क्या करेंगे फिर, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते साथ साथ जो है ना ये आगे काम बढ़ता जाएगा। इसमें मजीद हम लोग मजीद जगह के बारे में या मजीद देखेंगे जगह के इंशाल्लाह, साथ। ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक हो गया। तो बाकी अभी आज कितने बच्चों को डिवाइसें लग रही हैं? आज तो पहले 6 बच्चों की डिवाइसेस लग चुकी थी, उनको तो हमने स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग हो चुकी है आज। ठीक है, वो चेकअप हो अब चुका है। 4 बच्चों को मजीद हमने डिवाइसेस लगानी है, ठीक ठीक है। है। और उन डिवाइसेस लगाने के बाद उनकी स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग होगी और उनको बताया जाएगा कि डिवाइसेस का क्या फायदा है और उसके बारे में क्या करना है। ठीक और है। जिन बच्चों को पहले लगी हुई हैं उनको हमने, और कुछ बच्चे ऐसे आए थे जिनको हियरिंग वाला बिल्कुल नॉर्मल थी और सिर्फ स्पीच प्रॉब्लम थी, उनसे मैडम साहब ने उनकी स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग कर दी है। ठीक है। अब वो आगा जो है ना स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक। इसका हमने सबसे पहले तो ये ना हमारे पास गए थे, हमने इनका समाज का मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया था। ठीक टेस्ट है। करने के बाद फिर हमने इनके लिए एयर मोल्ड के सैल लिए थे। आज माशाल्लाह इसकी डिवाइसेस रेडी होकर आ चुकी हैं। आज हम लोग इसको डिवाइसेस फिटिंग करेंगे, ठीक है। और डिवाइसेस फिटिंग करने के बाद इसकी स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग करोगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। फिर आइंदा भी गा फिर स्पीच थेरेपी के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर आप आते रहेंगे ताकि बच्चे को सुनने के लिहाज से, बोलने की तरह से बेहतर की तरफ समझे, ठीक है। और अभी हम लोग फर्स्ट टाइम डिवाइसेस का वॉल्यूम फुल नहीं ओपन करते, एक लेवल पे रखते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने सबसे पहला जो मंथ होता है ना 1 मंथ से 2 मंथ तक सिर्फ लगाने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद सर आस्ते आस्ते आवाज का लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि बच्चे को मुकम्मल तौर पर सुनाई देना शुरू हो जाए। फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पूरा न खोलने की वजह ये होती है ताकि बच्चे को जो आवाज ज्यादा की वजह से बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग ये बच्चे को डिवाइसेस लगा रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस हैं, यहाँ पर इस तरह इसको सेल डालना है, इस तरह सेल डालने के बाद जो है ना इस तरह इसको ऑन करना है, ठीक है। और चंद सेकंड में डिवाइस जब ऑन हो जाती है तो ये आवाज देगी फिर। ठीक है। आई है आवाज 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 आई है? ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों को ना अभी ये इसका दरअसल का क्या समझना है कि इसको रोजाना डिवाइसेस लगानी है, चेक करके लगानी। अभी आवाज इसको जाना शुरू हो गई है, अब इसके दिमाग में कोई लफ्ज नहीं है जो ये बोल सके, ठीक है। अब आपने इसको लगा दी है, अब आपने ये करना है कि इसको डिवाइसेस रोजाना लगानी है, चेक करके लगानी है, पानी से बचाना है, गिरने से बचानी है। डिवाइसेस जितने आप एहतियात के साथ रोजाना इस्तेमाल करेंगे इतना ही फायदा होगा। फिर उसके बाद जो इसकी आवाज का लेवल है 1 महीने बाद इसका आवाज का लेवल मजीद बढ़ाएंगे। यहाँ से ही बढ़ेगा ना 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 कंप्यूटराइज सिस्टम, ये डिवाइसेस सारी ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए, कोई मैनुअल तरीके से आपने कुछ नहीं करना, वो सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप खुद करेंगे। बच्ची को हमारे पास जेरा मेटाल्स की तरफ से लेकर गए थे, तो इस बच्ची को जो लाभ था मॉडरेट टू सीवियर था दोनों कोनों में, ठीक है। यानी ये बच्ची सुन सकती है लेकिन जरा ऊंचा सुनती है। अब हमने इसका टेस्ट करके अभी हमने इसके लिए हियरिंग एड अलग बात तैयार करके लेकर आए हैं, फिट करना है। ये पूरा फिट करोगे तो सच बात। आवाज आ रही है? क्या नाम है आपका? हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। अब्बू का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये कौन है? मम्मा, वेरी गुड। आपका भाई है? क्या नाम है भाई का? हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। आवाज आई है? आवाज आई है ना? हाँ, वेरी गुड। अब ये बच्ची पहले जो है ना जिस वक्त इसको आला नहीं लगा हुआ था, नहीं कोई आवाज सही सुन नहीं सकती, सुनती थी लेकिन बहुत हाई लेवल पे। अब माशाल्लाह हमने इसको दोनों कोनों में आला लगा दिया है और ये देखो बच्ची माला बच्ची खुश भी हो रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक आ रही है आवाज? कोई शोर तो नहीं है? ये थोड़ा ऊंची लगती है? दर्द तो नहीं हो रहा? आवाज सही आ रही है? समझ आ रही है? कितने साल दे? 12 साल। स्कूल जानते हो? केड़ी क्लास पढ़ते हो? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब माशाल्लाह ये देखें इस बच्ची की जिस तरह की कंडीशन है, 6 महीने तक इसको आला लगा रहेगा ना, 6 महीने के बाद ये बच्ची नॉर्मल लेवल में सुनेगी, यानी आले के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन सुनेगी। अभी आपने साथ वाले रूम में जाके मैडम साहब से कुछ क्लास ले लेनी है, ठीक है, ताकि इस तरह के बच्चों के लिए किस तरह के करना है, ठीक है। इस पर डॉक्टर साहब डिवाइस लाने पिन, इस पर मैडम ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੇ ਪਿਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। डिवाइस वगैरह सुन तक कि डॉक्टर साहब 2 बच्चों की डिवाइस लाइया इस पर अच्छा करने से बाकी
अज ना जरा कैंप है वो 4 बच्चे की डिवाइस वाला इलेक्शन इस परसों तक नहीं सो ठीक है बाकी सीन है की उम्र तकरीबन 5 साल है, ठीक है, 5.5 साल है, तो 5 साल तो इसको जो है ना ये है कि ये बच्चा भी ना सही तरह नहीं सुन बोल सकता, तो हमने इसका टेस्ट किया था तो ये इसको जो है ना बहुत हाई लेवल पे समाज का मसला आया था। अभी हम लोग इंशाल्लाह इसको डिवाइस लगाएंगे तो ये भी वक्त के साथ साथ बहुत बेहतरी तरफ किया जाएगा, ठीक है। सर पर आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट ने तुसां गी विजिट कराया मुकम्मल कि इत्थै डिवाइसां वगैरह लगियां बाकी समात ने मुतलक चेकअप शैप होना पिया इस पर काफ़ी तादाद च बंदे आए इस पर। अस्सलाम वालेकुम अंजी साहिब भाई क्या हाल है, ठीक हो? सही ठीक है साहिब भाई सुबह ने कोई नाम शाम लिखने पसंद कितने बंदे ना दर्ज होए ने अज नवे ਨਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। नवे आए 40 बच्चे जी, जी। इन्होंने क्या मसला है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सुनने कोई नहीं ਹਾਂਜੀ मतलब उन्होंने डिवाइसा वाला इलेक्शन ਹਾਂਜੀ device अच्छा ये दसो कि 40 बच्चे ने ना दर्ज हो गए तो इन्होंने हूँ क्या तरतीब है इन्होंने अगू ਇਹਨਾਂ सिस्टम ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਹਰ ਵੀਕ 4 ਜਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ग्रुप ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋ इस्लामाबाद इस्लामाबाद ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। उन्हें पहले चेकअप हो सी ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ठीक है मतलब ये प्रोसेस कितने दिनों में होना टोटल? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 दिन लग जाने ठीक है। बाकी आज तक ने सोचे इतने अज जड़े ओपनिंग पर 40 बच्चे ने ना दर्ज हो गए नवे 40 बच्चे इन्होंने फ़ोन नंबर भी नोट कराए ने तो इन्होंने बच्चों की डिवाइसा वास्ते बुलाने तो बाकी इस उपर प्रोग्राम होना पाया मुकम्मल डॉक्टर साहब भी स्पीच करसन बाकी है कि खवातीन फैमिली वगैरह सारे बवन गए क्योंकि इन्हों की इन्फॉर्मेशन उत्थे ही मिल सी डॉक्टर साहब इन्फॉर्मेशन देंगे बाकी अंदर चेकअप होना पाया इस चेक करने डिवाइसा वगैरह लगनियाँ पियाँ लैब वगैरह मुकम्मल और मज़ीद इस विच इम्प्रूवमेंट आनन गया आस्ता आस्ता। अब जब बच्चों का फर्स्ट टाइम आवाज़ आती है तो वो खुशी महसूस करता है। अब ये माशाल्लाह बड़ी खुशी महसूस इशारा करें इसकी आवाज़ आ रही है इशारा करें इसको आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही आवाज़ आ रही ठीक है ठीक है। शर्मा रहा है अब ये इसको आवाज़ आ रही है ना अभी असल में ये फर्स्ट टाइम सुन रहा है इसको अजीब सी फीलिंग हो रही है कि ये कैसी आवाज़ है। अब जैसे जैसे ये लगाना शुरू करेगा ना इसके साथ जैसे जैसे आवाज़ों के साथ फिर बेहतर ये जाएगा इंशाल्लाह। यह 4 बच्चे जिन्होंने की आज इतने आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट पर डिवाइसा वगैरह लगियां एक बच्ची है एक बच्चा है एक बच्चा है तो बाकी ये बच्चे केड़ी जगह तो आए कोई इल्म हुआ है? बच्ची आई है बैंस पूना बैंस पूना ये समानी थी मास्टर मुजीब साहब ने सरदार ठीक है। बरजा गाला थी ठीक है ये है यार ब्रो रमलो चौकी रमलो ठीक है। इन्हों विचों इस बच्चे की डिवाइस लगी है ये बोल सकनी है लेकिन सुन नहीं सकनी इसकी डिवाइस लगी है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम सुना कितनी पन्ने हो? 5वीं 6वीं ठीक हो गया। ये बच्ची जड़ी है बोल सकनी है लेकिन सुन नहीं सकनी डिवाइसा इसकी लग गई हैं बाकी यह बच्चा भी ठीक हो आवाज़ आनी है ठीक है। यह बच्चा को बहुत शरारती है ठीक है बाकी आवाज़ आनी है ठीक है। अभी ये बच्चा बहुत छोटा है ना अच्छा। तो रिस्पांस अभी तो उससे कम पता नहीं चल रहा ना ठीक है। अभी ये जैसे जैसे लगाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह इसका रिस्पांस नहीं वो आंसर है उसको थोड़ी थोड़ी कुछ महसूस हो रहा है आवाज़ महसूस हो रही है कि वो खुश हो रहा है। ठीक है। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह वो जुबान देखें हाँ, बोलो very good। अल्लाह अल्लाह गुड हो गया ठीक है। अब ये माशाल्लाह जैसे हाँ जैसे बोलो लगेगा ना- अल्लाह बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ इस बच्चे का लाभ बहुत ज्यादा था फुली परफॉर्म था ठीक है। ऐसा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जो फुली परफॉर्म लेवल होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है उनके ठीक लिए। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ ये जाएगा। ठीक हाँ जी व्यूअर्स जिन्होंने बच्चों की डिवाइस वगैरह लगी हैं आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट पर उन्होंने आपसे मुकम्मल विजिट कराया है। बच्चों की जिस टाइम डिवाइस लगी है उस टाइम उन्होंने आवाज़ दी गई है या ताली बजा गया या उन्होंने आख्या अल्लाह आखो तो वो बोले भी है कि थोड़ा बहुत फ़र्क क्या है। बाकी इस ऐप पर दफ्तर की ओपनिंग हुई है तो इंशाल्लाह असां दुआवां नाल हन कि इंशाल्लाह इस विच कामयाबियां आवन तो भैन भरावां गी आखसां कि इस अदारे नाल तामन करो। समानी ज़ात कश्मीर अंदर यह अदारा काम करना पाया और इस तरह का कोई अदारा नहीं तो ये नेक ख्वाहिशात नाल ये अदारा अपना काम स्टार्ट किया इस विच सारे भैन भरा तामन करसो तो इन्होंने नंबर वगैरह भी असां स्क्रीन पर शो करसां तो यह है कि यह अदारा अच्छे तरीके काम करा। बहुत सारे बंदे ऐसे होने न जेह्ड़े मतलब खसूसी तौर पर ज़रूरतमंद होने जिन्होंने इतने साहिब साथ नहीं होनी जेह्ड़े बच्चों की डिवाइसां नहीं लवा सकने वो अदारा उन्होंने फ्री विच डिवाइसां लवा सी। तो बाकी हुण चलने इस उपर प्रोग्राम होना पाया मुकम्मल इसने मतलब क्या सिस्टम है डॉक्टर साहब भी स्पीच करसन बाकी जेह्ड़े अवाम इलाका ने बंदे ने स्पीच कराने इस अदारे ने मतलब उत्थों की विजिट कराने हैं।
تو ہم نے میرے بھائی نے یہ سوچا کہ ہم وہ کردار جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انسانی خدمت کے حوالے سے وہ جاری کرنا چاہیے، اور اس میں بازی لے گیا ہمارا بھائی چودھری محمد ندیم۔ میں اس کی صحت کے لیے، اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نے اچھا سوچا ہے۔ یہ سارے لوگوں کے مسائل اس قابل نہیں ہیں۔ آج کل ہاسپٹل میں اگر جائیں تو پوری بوری پیسوں کی ہونی چاہیے، بعض کا ڈیڈ باڈی جو ہے گروی رکھ لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ تو ایسے دور میں جو لوگ اپنے بچوں کو کسی آئیڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نہیں لے جا سکے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو دوستو اس کا آغاز ہو چکا، الحمدللہ 7 بچوں کو ڈیوائسز لگ چکی ہیں، اور 4 کو یا 5 کو آج لگ رہی ہیں، 4 کو یہ مصنف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، یہ سے تشریف لائے ہیں۔ کرم سے ہمارا ایسا کام ہے کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم لوگ ایک سپلائر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائی ندیم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ آپ نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آپ نے وہ کام شروع کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، شاید میں اس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے پہلے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ امپورٹ کرتے ہیں بات ہے، پاکستان کی سطح پر تو، مقامی سطح پر تو یہ چیز بنتی نہیں ہے، اس کی بیٹری سے لے کر ہر چیز اس کی جانا باہر سے آتی ہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی کا دور ہے تو ان چیزوں کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہی ہوگی، میں اپنے ادارے جی ایم ٹی کی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ اس ادارے کی طرف سے جب انہوں نے معاملین نے مجھ سے درخواست کی تھی، میں نے کہا تھا انشاءاللہ آپ اس معاملے میں فکر رہیں کہ یہ ٹرسٹ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ویلفیئر ٹرسٹ اوپن ہو رہی ہے جو صرف اور صرف بہرے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، تو یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہ نہیں۔ میں عرصہ 2-3 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور تقریباً 10 سے زیادہ بچوں کے کاکلر امپلانٹ کے آپریٹ کروا چکا ہوں، لیکن میرے علم میں پورے پاکستان میں ایسی کوئی این جی اوز نہیں جو صرف خالصتاً ان بہرے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ آج تک کسی بھی سیاسی شخص نے بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا سوائے ایک جنرل ضیاء الحق کے۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی بچی اس مرض کا شکار تھی۔ ہم لوگ ان بچوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ندیم بھائی کا کہ انہوں نے یہ سوچ پیدا کی۔ ان کی یہ سوچ ہمارے لیے ایک دیے کا کام آتی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس دیے کو بجھنے نہیں دینا۔ نام رکھا ہے، اس نام کی بڑی اہمیت۔ عائشہ اور سلیم، آپ کے حسن انتخاب پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سارے اہلیان وادی سمانی اور سارے لوگوں کی طرف سے، کہ آپ نے جو نام رکھا ہے، خدمت کے نام جو بھی رکھے کوئی مسئلہ، لیکن جو آپ نے خوبصورت نام کا انتخاب کیا ہے، آپ کے اس انتخاب پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری مبارک آپ کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے شعبہ اختیار کیا ہے، جو جس کام کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ ایسا کام ہے جو معاشرے کے اندر بالکل اگنور، یہ جو سیکٹر ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ اگنور شعبہ ہے، کہ باقی بھوک لگی ہے، کپڑے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سیلاب آ گیا، ڈائلسس ہو رہے ہیں، ایمبولینسز چل رہی ہیں، باقی کام ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پورشن تھا جس کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کا انتخاب کیا، اور اس انتخاب میں بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وادی سمانی کے اندر یہ اس شعبے کا انتخاب کر کے اپنے منفرد سوچ کو قائم رکھا، اور آپ نے اس علاقے کا سپوت ہے، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کی خدمت کرنے کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا، اس پر بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوشی ہے ندیم صاحب، محفوظ صاحب، فاروقی صاحب
अल्लाह पाक इन्हें कामयाब व कामरान करे। एक शेर मैं सुनाता हूँ कि मखलूक खुदा जब कहीं मुसीबत में फंसी हो, मखलूक खुदा जब कहीं मुसीबत में फंसी हो, सजदे में रहना इबादत नहीं होती। मैं समझता हूँ जिंदगी जिंदा वही बंदा गुजार रहा है अगर वो साहिब इस्तेतात है और उसे अपने बहन भाइयों, दोस्तों, बस्ती में किसी को फैज़ पहुंच रहा है। अगर किसी को फैज़ नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूँ कि वो दिन गुजार रहा है, बात बन नहीं रही। अब इबादत तो साढ़े तो फर्ज है और करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक दी जिहड़ी मखलूक है उसमें तुसी पूरी प्रायोरिटी के नाल, ये नहीं कि बंदा मरदा होवे पिया, अग लगी होवे पई तो बंदा नफल नहीं चले, ये चीज़ नहीं। इस वास्ते पहली प्रायोरिटी जिहड़ी है वो अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत, उससे बाद बाकी चीज़ां ने। मैं मुख्तसर करना कि मैं तकरीबन यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन है पूरे ज़िले अली बेग, शंभ, नाली, पत्नी, पूना, पुणे से अगली यूनियन काउंसिल संदाड़, वहाँ तक हमने ना वो जर्सियाँ, जराबें, टोपियाँ दी हैं। तो 25% ऐसे बच्चे थे जो इस सर्दी में भी चप्पलें पहनी हुई हैं उन्होंने। तो देखिए ये भिंडी में जो बच्चे चप्पलें पहने गुजर रहे हैं, तो क्या उसके रिश्तेदार, उसके महल्ले, ये कोई एहसान नहीं। अगर किसी के पास चप्पल नहीं आप पहनाते हैं, उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि उस बच्चे का एहसान है हम पर कि अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बताया और ये अल्लाह पाक की खुशनुदी का हम सबब बने। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए। एक बार फिर मैं यहाँ तीनों भाइयों को, सूफी सलीम साहब को, अहले बस्ती को और जो लोग नेकी का काम जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और वही काम है जो करने वाला है। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम। जी प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, बाकी है कि हुण मजीद असां एक दो बंदे को इसने बारे थोड़ा जिहा इंटरव्यू वगैरह लैसा। अब तक ने सौ मेहमान जड़े आए ने सारे जा रहे। चलो बाद में मेरी हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया। आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट की ओपनिंग सी अज, तो बाकी जो प्रोग्राम वगैरह आया मुकम्मल तुसां नाल असां वक्तन छोटे छोटे क्लिप तुसां शेयर किए। तो बाकी असां नाल इस टाइम जेडे आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट ने बानी ने नदीम भाई उन्होंने बड़े भाई मौजूद हैं, तो नाल साजिद साहब हैं, तो इस पर उधरी अब्दुल रशीद साहब यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन। बाकी भाई नाल असां आखने इस बारे मालूमात दें। जी आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट की ओपनिंग हुई है, इसने विच ये अदारा क्या क्या काम करता है, क्या सिस्टम है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका बेटा, आपने मुझे मौका दिया है। आशा वेलफेयर ट्रस्ट, आशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट का जो किरदार है वो आप आज के फंक्शन में मौजूद थे, वो तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। हमारे वालिद साहब ने एक समाजी खिदमत की है और बड़े अरसा तक की है। वो पिराना साली की वजह से वो खिदमत अपनी आज से 10-15 साल पहले जारी न रख सके। मैं मुलाजमत में था, हम 3 भाई हैं, मेरा दूसरा भाई भी मुलाजमत में था, तो मेरी मजबूरी थी, मैं शामिल नहीं हो सकता था। मैं मीरपुर से गुजरात से रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद से 2 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो फिर भी मैं वो किरदार अदा नहीं कर सका, वालिद साहब के उस मिशन को जारी नहीं रख सका। तो बहरहाल ये बेड़ा उठाया मेरे भाई ने, मोहम्मद नदीम साहब, जो यूनाइटेड किंगडम में हैं पिछले 22 साल से। उन्होंने ये सोचा कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा अदारा हमारे ज़िला में नहीं है, मीरपुर में नहीं है। डडियाल में एक है, तारक अंसारी साहब हैं, हमारे भाई हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बाकी बहुत कम है। तो ये बच्चे भी माशरे का हिस्सा हैं। तो ये आज से 3-3.5 साल पहले की उसकी मेहनत है, और अब ये वालिदैन के नाम पर आयशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया है। और इसका मकसद जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उनके लिए किरदार अदा करना है। तो उनको
इस वक्त तक 7 बच्चे जो थे कल शाम तक उनको डिवाइसेस लग चुकी थी और 4 को आज इस तकरीब से पहले लगी हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है वो जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके लिए जो इमरान भाई अल्लाह रखा साहब के बेटे हैं उनके थ्रू जो हमारा रास्ता हुआ है वो 25 लाख से ज़्यादा एक बच्चे पर ख़र्चा आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव हमारे उस भाई का था, हम उसमें शामिल हुए और अकेला ही चला था, जानब मंजिल लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। इस तरह ये कारवां बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो बच्चे जिनको डिवाइस लगी हैं उनके कान में पहली दफ़ा दुनिया की आवाज़ पहुँची है। उनके वालिदैन की खुशी या उन बच्चों की खुशी मैयर करने के लिए कोई पैमाना नहीं है। तो मैं अपने उस भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ और जिन लोगों ने भी जिनका भी साथ है इसमें मावनत है, जज्बात लोगों के आज आपने सुने हैं, उनका भी बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जनाब चौधरी अब्दुल रशीद साहब जो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस है, बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं, समाजी काम पूरे ज़िले में। इन्होंने गांव-गांव जाके मुझसे ये 6-7-8 साल बड़े हैं, 70 साल के लगभग इनकी उम्र होने को है। तो इन्होंने ख़ुद जाके सर्दी में बच्चों को जराबें, जर्सियाँ, टोपियाँ और साजिद साहब ने जाके तकसीम की हैं। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं साजिद इकबाल साहब का बड़ा किरदार है तमाम समाजी कामों में और उसी तरह इनका चिनार डलाइस में भी किरदार है, यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन में भी किरदार है, बिंडी वेलफेयर फाउंडेशन में भी किरदार था और आशा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन में भी ये सबसे आगे हैं। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता करे। पहले तो मैं मोहम्मद नदीम साहब जो आयशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि नेकी के इस काम में जो है हम दम दिर कदम सोहने हस्बे इस्तिदाद शामिल हो सकें। तमाम अहबाब को ये मालूम है कि ये बहुत कॉस्टली जो है ये इलाज है। वो डॉक्टर साहब ने भी बताया, आप भी सुन रहे थे कि नॉर्मल जो है 3-4 लाख तो नॉर्मल बच्चे पे ख़र्चा है और जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं वो 20 से 25 लाख का ख़र्चा है। तो उसके लिए अभी भाई मोहम्मद यूसुफ साहब बता रहे थे कि इमरान साहब हमारे एक बिंडी सरनेला के रहने वाले मिर्ज़ा अल्लाह रखा साहब के बेटे, उनके तावन से जो है ना वो 5 या 6 बच्चों को जो डिवाइसेस हैं वो हफ्ते अशरे तक लग जाएंगी। मैं वादी समानी के तमाम अहबाब और बिलखसूस जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आयशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जिस कदर हस्ब इस्तिताअत जो है वो तावन करें ताकि जो क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चे हैं उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात बाहम पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नेकी के काम में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज दिन से मैं यहाँ इफ्तिताह था आयशा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट का, उस सिलसिले में हाज़िर हुआ था। मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में गुर्बत है वो इतनी ज़्यादा है कि आदमी जो 3 वक्त का खाना है वो नहीं खा सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इस तरह की तकालीफ हैं लोगों के, महंगाई का ये दौर है। तो जो गूंगा और बहरा बच्चा घर में पैदा हो जाता है तो घर वालों को उसे संभालना, उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक बच्चा जो कुछ भी नहीं कर रहा तो घर वालों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। और एक अदारा बनता है और उस अदारे से उसका इलाज होता है, वो सुनना बोलना शुरू कर देता है, तो कितनी बड़ी अल्लाह पाक की उस घराने पर रहमत होगी। तो ये जो काम लोग करते हैं ये अल्लाह पाक का ये स्पेशल कर्म होता है उन लोगों को कि उनके दिलों में ये बात आ जाती है कि हम ये नेक काम करें। मैं एक दफ़ा कहीं पढ़ रहा था कि कराची से पंजाब ट्रेन पर एक खातून अपनी जवान बेटी को ला रही थी, तो वो रास्ते में ना देखे तो कहे, बार बार कहे कि देखो जितनी गाड़ी हमारी तेज़ जा रही है इतना ही दरख्त भी तेज़ जा रहे हैं। अब देखते हैं दरख्त की तेज़ स्पीड है या हमारी गाड़ी की स्पीड तेज़ है। तो साथ बैठी खातून ने कहा कि बहना
یہ دیکھیں آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس کا کچھ خیال کریں، اس کا کچھ علاج کریں تاکہ یہ کچھ صحیح سمجھ سکے۔ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، کراچی گئے تھے، اس بیٹی کو نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ آج جب اسے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کے لیے نئی ہیں، یہ آہستہ آہستہ سمجھے گی کہ درخت چل نہیں رہے، گاڑی چلنے سے درخت نظر آتے ہیں۔ یہی حال یہ بچوں کا ہے جنہیں کوئی پتہ نہیں یہ کس کی آواز ہے، کوے کی ہے، بندے کی ہے، ماں کی ہے، باپ کی ہے، اور جب یہ سنائی دے گا۔ آج جب فنکشن ہو رہا تھا تو 2 بچے وہاں اسٹیج پر آئے، اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بولتے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بولنا کیا ہے، کیسے بولنا ہے یا کیا بولنا ہے۔ تو میں سچی بات ہے کہ صوفی سلیم صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت دے، تندرستی دے، ان کے بیٹے اس بستی کو، جتنے بھی لوگ یہاں رہنے والے ہیں یا جو لوگ اس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچوں کے ساتھ تعاون ہے یہ ہمارا تعاون نہیں بلکہ ان بچوں کا تعاون ہے کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ دعا کرتا ہوں کہ عائشہ سلیم کا یہ ادارہ نہ صرف بنڈی بلکہ ضلع بھر بلکہ اس سے بھی آگے جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔